میں اس وقت نیم بے ہوشی میں تھا۔ میرے بھاری بھرکم ہاتھ کسی کے نازک ملائم ہاتھوں میں تھے۔ وہ نسوانی آواز جیسے ہی میرے کانوں میں پڑی تو میں چونک گیا کہ نہ جانے میں کہاں ہوں۔ وہ جو کوئی بھی تھی وہ سسکیوں سے رو رہی تھی، جیسے وہ میری اپنی ہو۔ اس کے ملائم ہاتھوں کا لمس مجھے اپنے ہاتھوں میں محسوس ہوا۔ تب میں نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولی۔ جیسے ہی میں نے اپنے سامنے دیکھا، اس خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ نہ جانے یہ لڑکی کہاں سے آئی ہے۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھا۔ اس لڑکی نے جیسے ہی مجھے ہوش میں آتا دیکھا، فوراً سے میرے قریب آئی اور خوشی سے بولی، ارے تمہیں ہوش آ گیا؟ دیکھو اب تم یہاں سے دور چلے جاؤ اور خدا کے لیے اس درخت کے پاس مت آنا، ورنہ میرے بھائی تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ اس کی بات سن کر میں گھبرا گیا تھا۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگا، جو کہ کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی نیلی آنکھیں اور ان میں وہ چمک میرے دل کی دھڑکنیں تیز کر گئی۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے جانے ہی والی تھی جب اگلے ہی پل میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور سختی سے بولا، کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو اس جنگل میں؟ وہ تمہارا بھائی کیسے ہو سکتا ہے؟ میری بات سن کر وہ تیزی سے سانس لینے لگی، پھر پیچھے مڑ کر ایک نظر مجھے دیکھا اور پھر اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا جو اس وقت میری مٹھی میں قید تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے چینی جھلکنے لگی۔ وہ اپنا ہاتھ مجھ سے چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا، نہیں، پہلے تم مجھے اپنی سچائی بتاؤ گی، پھر ہی میں تمہیں یہاں سے جانے دوں گا۔ تم کیوں میرے پاس بیٹھی رو رہی تھی؟ آخر تمہیں اس میں کیا ہے کہ میں درخت کے پاس آؤں یا نہ آؤں؟ جب اگلے ہی پل اس نے اپنے دوسرے ہاتھ کی کلائی میں دیکھا، وہاں ایک گھڑی بندھی ہوئی تھی۔ وہ دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، پھر سختی سے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھڑانے لگی اور کہنے لگی، چھوڑو میرا ہاتھ، 3 بجنے میں چند سیکنڈ باقی ہیں، مجھے جانے دو۔ اس کی بات سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور یوں نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اپنا ہاتھ کھلا چھوڑ دیا۔ وہ آزاد ہو گئی تھی۔ اچانک وہ کہاں گئی تھی مجھے سمجھ نہیں آئی۔ میں یہاں وہاں بے چینی سے دیکھتا جا رہا تھا، لیکن وہ جو بھی تھی میری نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ میرا نام مہراج ہے۔ میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں اپنی ماں اور چھوٹی سی بہن کے ساتھ رہتا تھا۔ میرے ابا کا انتقال تب ہوا جب میں تقریباً 10 سال کا تھا اور میری بہن 2 سال کی تھی۔ ابا لکڑیاں بیچنے کا کام کرتے تھے۔ ابا لکڑہارے تھے۔ بچپن میں ہمیشہ میں ان کے ساتھ جنگل میں آیا جایا کرتا تھا۔ مجھے ایک درخت کی مضبوط شاخ پر وہ بٹھا دیتے اور خود لکڑیاں کاٹتے رہتے۔ میں غور سے ابا کے کام دیکھتا اور کافی کچھ سیکھ چکا تھا۔ پڑھائی میں نے بچپن میں ہی چھوڑ دی تھی۔ ابا کے ساتھ شہر آیا جایا کرتا۔ پھر جب ابا کا انتقال ہوا تو یہ کام مجھے ہی سنبھالنا پڑا۔ میں نے ابا کا کلہاڑا اپنے ہاتھوں میں لیا اور جنگل کی طرف نکل چکا تھا۔ اماں نے نہ جانے کیا کچھ پڑھ کر میرے چہرے پر پھونکا تاکہ میں دعاؤں کے حصار میں رہوں، کیونکہ میں جنگل میں جا رہا تھا۔ اسی جگہ ہی تو ابا کو زہریلے سانپ نے کاٹا تھا۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے؟ ہمارا رزق سب کچھ اس جنگل کے نصیب سے تھا۔ جنگل پہنچ کر میں نے وہاں نگاہ دوڑائی کہ آخر میں کس درخت کو کاٹوں۔ مجھے خوبصورت درخت نظر آیا جس کی شاخیں ہر طرف پھیلی تھی اور اس کی لکڑی کافی موٹی تھی، پر میں اتنا تجربہ کار نہیں تھا کہ پہلے ہی درخت کو کاٹ لیتا۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ جب میں تجربہ کار لکڑہارا بن جاؤں گا تو درخت کو ضرور کاٹوں گا۔ یقیناً اس کی لکڑی کافی قیمتی ہوگی۔ جب بھی میں مالک کے پاس جاتا تو مالک مجھے ہمیشہ ڈانٹتا، مہراج یہ کیسی لکڑیاں لے کر آئے ہو؟ اس کے تو تمہیں 1000 روپے بھی نہیں ملیں گے۔ مالک مجھے 500 روپے دے کر واپس بھیج دیتا۔ میری بہن مہرین جو اس وقت 10 سال کی تھی، اسے دمے کی بیماری ہو گئی تھی۔ وہ آئے روز کھانستی رہتی۔ اس کے علاج کے لیے میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ ایک روز میں نے مہرین کو تسلی دی، ارے مہرو، فکر کیوں کرتی ہو؟ تیرا بھائی ہے نا؟ تیرے بھائی کو ایک اتنے خوبصورت اور قیمتی درخت کی لکڑی ملی ہے نا کہ بس اب تو میں وہی کاٹوں گا اور دیکھنا ان پیسوں سے تمہارا علاج ہوگا۔ وہ خوش ہو جاتی، لیکن میں جب بھی اس درخت کی قیمتی لکڑی کاٹنے کا سوچتا تو ہمیشہ میری ہمت ہار جاتی، کیونکہ میرا کلہاڑا اس درخت کے مقابلے میں کافی نازک تھا۔
यूँ आहिस्ता आहिस्ता मेहरू की सारी उम्मीदें ख़त्म हो गई थी। उस रोज़ मेरे जाने से पहले मेहरू बहुत ज़्यादा रोने लगी और कहने लगी, भाई अब तो मुझे सारी उम्मीदों पर पानी फेरता नज़र आ रहा है। ऐसे लगता है कि इस दमे से लड़ते लड़ते मैं दुनिया से ही चली जाऊंगी। मैंने मेहरू को चुप करवाया। पागल लड़की, रोती क्यों हो? खबरदार जो आज के बाद तुमने ऐसी बात की। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा। देखना आज तो मैं वो लकड़ियाँ लेकर रहूँगा। मेहरू की बातों ने मेरे अंदर हिम्मत पैदा कर दी और अब मैं उस जंगल के उसी हट्टे कट्टे दरख्त के सामने खड़ा था। मैंने हिम्मत की और दरख्त पर चढ़ना शुरू कर दिया। अभी मैं चढ़ने ही वाला था जब अचानक से वो दरख्त हिलना शुरू हो गया और इतनी ज़ोर से हिला कि मैं धड़ाम से ज़मीन पर आ गिरा। मुझे कमर पर गहरी चोट आई थी, लेकिन चोट की परवाह किए बगैर मैंने फिर से हिम्मत ना हारते हुए दरख्त पर चढ़ना शुरू कर दिया। बामुश्किल मैं दरख्त के ऊपर की तरफ चढ़ गया। यहाँ मुझे एक शाख दिखाई दी। मैंने अभी अपना कुल्हाड़ा उस तरफ मारा ही था कि अगले ही पल एक चीख सुनाई दी। उस चीख ने तो मेरे उसान खता कर दिए। मैं हैरत ज़दा होकर यहाँ वहाँ देख रहा था। उस जंगल में तो कोई भी नहीं था, फिर ये आवाज़ कहाँ से आई थी? इससे पहले कि मैं वो शाख पूरी तरह से काट देता, मुझे ऐसे लगा कि जैसे किसी ने मेरे कानों में सरगोशी की हो। प्लीज़ इसे मत काटो, हमारा घर मत उजाड़ो। मैं घबराहट के मारे इधर उधर देखने लगा। अगले ही पल मेरी नज़र उस स्याह रंग की बिल्ली पर गई। उसकी नीली आंखें देखकर तो मैं सटपटा ही गया। वो बिल्ली उसी दरख्त पर बैठी थी जिसकी दुम हिल रही थी। वो मुझे ऐसे क्यों देख रही थी? न जाने मैंने उसका कौन सा जुर्म कर दिया हो। उस पर से अपना ध्यान हटाते हुए मैंने वो शाख काट ली। वो शाख एक तेज़ आवाज़ के साथ जंगल में गिर गई। मेरे चेहरे पर फतह की मुस्कुराहट आ गई। अभी मैं नीचे उतरने ही वाला था जब मुझे ऐसे लगा कि जैसे किसी ने मुझे धक्का दिया हो। मैं धड़ाम से मुंह के बल आकर गिरा। मेरे बिल्कुल ऊपर उसी दरख्त का साया था जिसके ऊपर वो काले रंग की बिल्ली बैठी मुझे देख रही थी और अपनी दुम हिला रही थी। अचानक से मुझे ये हरकत करते देखकर वो आवाज़ निकालने लगी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और वो उस पूरे दरख्त में यहाँ वहाँ घूम रही थी। मैंने वो शाख अपने साथ ली और जंगल से बाहर आ गया। जंगल से थोड़ा दूर जाकर मैं लकड़ियाँ काटने लगा, लेकिन अब बहुत ज़्यादा रात हो गई थी। रात के 8 बज गए थे। शहर जाकर बेचना लकड़ियाँ बेवकूफ़ी थी। यही सोचा कि अब अगले दिन जाकर शहर में लकड़ी बेचूंगा। खुशी खुशी घर आया। मैंने सारी लकड़ियों को इकट्ठा बांधा और अपनी साइकिल की पिछली सीट पर रखा। अम्मा ने जैसे ही वो लकड़ियाँ देखी तो खुशी से निहाल हो गई। मेहरू का भी यही हाल था। मेहरू को मैं सुबह रोता हुआ छोड़ कर गया था, पर अब आया तो वो खुश थी। मैंने तसल्ली दी, देखो मेहरू, ये लकड़ियाँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से काफ़ी मुश्किल से काट कर लाया हूँ। अब देखना कल जाकर बेचूंगा तो मालिक इसके पूरे 5,000 रुपये ज़रूर देगा। मेहरू खुशी से मेरे गले लग गई। मैंने उसके माथे पर प्यार दिया और लकड़ियों का गट्ठा सहन में रखकर हम अंदर आ गए। सर्दियों का मौसम था, इसी वजह से हम लोग अंदर ही चारपाइयाँ डालकर सोते। मुझे तो सारी रात इसी खुशी में नींद नहीं आई। रात को मुझे अजीब सी बेचैनी हुई। दिल कह रहा था कि जाकर देखूं कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लकड़ियाँ गायब हो जाएं। न जाने मुझे ये ख्याल क्यों आया। इसी रात को मैं आधी रात को उठकर जल्दी से लकड़ियों की तरफ गया। लकड़ियों को सही सलामत अपने सामने देखकर मेरा दिल पुरसुकून हो गया। मैंने सोचा कि अब मैं सुकून से सोऊंगा। फजर की अजान पर उठा और यूँ तैयार होकर फिर से वो लकड़ियाँ उठाकर अपनी साइकिल पर रखने ही वाला था कि अचानक से मेरे हाथ गीले हो गए। ये देखकर तो मेरी रूह साकत हो गई थी। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने उन लकड़ियों पर जैसे ही हाथ फेरा, मेरा हाथ फिर से गीला हो गया। मैंने अम्मा से कहा, अम्मा यहाँ आए, इन लकड़ियों पर किसने पानी फेंका है? ये लकड़ियाँ गीली क्यों हैं? अम्मा ने कहा, महराज कैसी बातें कर रहे हो? हम सब तो सो गए थे। हमारा घर भी इतना खुला नहीं है कि कोई इसमें आ सके। अम्मा दीवारों को देख रही थी और मेहरू भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। कहने लगी, भाई अब क्या होगा? गीली लकड़ियाँ तो मालिक खरीदता ही नहीं है। मैंने मेहरू को कहा, मेहरू कोई बात नहीं है, ये लकड़ियाँ खुश्क हो जाएंगी। बल्कि मैं ऐसा करता हूँ कि आज ही दोबारा से नई लकड़ियाँ काट कर जाकर ले आता हूँ। मैंने मेहरू को तसल्ली दी, हालांकि अंदर से मैं बहुत घबरा रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है।
शायद किस्मत में यही लिखा था। वो लकड़ियाँ सुखाने के लिए मैंने धूप में डाल दी और अपनी साइकिल भगाकर जंगल आ गया। मैं अब उसी दरख्त के पास खड़ा था। अचानक मुझे उस बिल्ली का ख्याल आया, पर आज मुझे वो बिल्ली कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। अपना जहन झटक कर मैं काम में मसरूफ़ हो गया। दरख्त पर चढ़ने लगा कि इस बार वो दरख्त तेज़ी से हिलने लगा और अजीब जानवरों की आवाज़ आने लगी। जानवरों की आवाज़ आना तो जंगल में आम सी बात थी, लेकिन ये आवाज़ें सुनकर मुझे ऐसे लग रहा था जैसे बहुत करीब हो। पर आसपास देखा तो कोई भी जानवर मुझे दिखाई नहीं दे रहा था और दूर वो बिल्ली भी नहीं थी। मुझे ऐसे लगता कि जैसे मेरा वहम है। तभी मैं फिर से लकड़ियाँ काटने लगा। एक शाख पर जैसे ही मैंने कुल्हाड़ा मारा, ऐसे लगा कि जैसे किसी ने चीख मारी हो। वो चीख मुझे काफ़ी करीब से सुनाई दी। मैं बहुत घबरा गया कि बेचैनी के मारे कुल्हाड़ा मेरे हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। मैं सर थाम कर रह गया कि एक और मुसीबत आन पड़ी है। मुझे दोबारा से नीचे जाना पड़ा। मैंने कुल्हाड़ा फिर से अपने पीछे बांधा और दरख्त पर चढ़ने लगा। यूँ मैं दोबारा से उसी जगह पर आकर बैठ गया था और इससे पहले कि मैं वो शाख काटता, फिर से अचानक नस्वानी आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। कहा ना, हमारे घर को छोड़ दो। क्यों उजाड़ रहे हो हमारा घर? ऐसा मत करो वरना वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। ये आवाज़ सुनकर मेरे हाथ कांपने लगे। मैं उसी हाथ से तो कुल्हाड़ा पकड़कर शाख काट रहा था। मैंने इधर उधर देखा तो दरख्त के पत्तों के बीच उसी बिल्ली की नीली आंखें दिखाई दी। मेरा दिल जैसे धड़कना बंद हो गया। मैंने फौरन आंखें बंद करके खोली, देखा तो बिल्ली गायब थी। अब मैं फिर से काम में मसरूफ़ हो गया और दोबारा वही शाख काटी। फातिहाना मुस्कुराहट चेहरे पर से जाकर एक छलांग लगाकर नीचे उतरा। अब उस शाख की लकड़ियाँ काटने लगा था। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया था कि इस बार तो मेरा काम हो गया। अब मैंने फैसला कर लिया था कि मैं लकड़ियाँ बाहर नहीं छोड़ूंगा, बल्कि अंदर रखकर सोऊंगा, ताकि जिस किसी ने भी शैतानी हरकत की थी वो बाज रहे। खुशी खुशी साइकिल पर लकड़ियाँ रखकर घर चला आया। अम्मा और मेहरू, जो कुछ देर पहले बहुत परेशान थी, मुझे फिर से वही कीमती लकड़ियाँ लेकर आते देखकर दोनों खुश हो गई। मैंने उन दोनों से कहा, इस लकड़ी को कहीं अच्छी जगह पर रख दो। अम्मा ने लकड़ियाँ उठाकर किचन में रख दी, जबकि दूसरी लकड़ियाँ भी खुश्क हो गई थी। अब अगले रोज़ मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था, क्योंकि मैं ये लकड़ियाँ बेचकर बहुत ज़्यादा पैसे कमाने वाला था। हराम की नींद सो गया था। अब मुझे ये सुकून था कि कोई भी लकड़ियों पर पानी नहीं फेंकेगा। अभी आधी रात गुजरी थी जब अचानक हर तरफ से धुआं ही धुआं छा गया। ये मंजर देखकर तो मैं बहुत घबराहट का शिकार हो गया। मेरी चीख अम्मा और मेहरू सुनकर दोनों उठ गई। मुझे होश ही नहीं था। मैं बस चाह रहा था कि किसी तरीके से ये धुआं ख़त्म हो जाए। मैंने बाहर जाकर देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि धुआं किचन से आ रहा था, जबकि किचन में आग लगी थी। अम्मा को देखा तो वो बाहर की तरफ जा रही थी। मैं भी बाहर आया। जाकर देखा तो मेहरू कहीं नहीं थी। अम्मा कहने लगी, मेहरू तो अंदर है। अब मैं दोबारा अंदर आ गया। मैंने मेहरू को हर तरफ तलाश कर लिया था। मेहरू घर पर ही नहीं थी। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि न जाने मेहरू कहाँ गई है। थक हार कर बाहर आया। अम्मा से कहा, अम्मा, मेहरू अंदर नहीं है? मोहल्ले में हलचल मच गई थी। हमारे हमसाए वाले भी आ गए। आग इतनी ज़्यादा थी कि सभी बुझाने में लगे थे। अचानक मेरी नज़र गली के कोने में मेहरू पर पड़ी, जो कि आराम की नींद सो रही थी। उसे सोता देखकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मेहरू को दमा था, उसे सांस की बीमारी थी। धुएं में तो उसका दम और भी ज़्यादा घुट जाता। इसी बात का तो मुझे खौफ था, पर मेहरू अब आराम की नींद सो रही थी। मेहरू बाहर कैसे आई थी, ये सवाल मेरे जहन में छाने लगा। ये आग कैसे लगी, मुझे समझ नहीं आ रहा था। अम्मा से पूछा, अम्मा, आपने गैस का वाल्व ऑन तो नहीं किया था? अम्मा कहने लगी, पुत्र, कैसी बात कर रहे हो? आज तक कभी ऐसा हुआ है? गैस वैसे भी सारी रात नहीं होती, सुबह ही तो आती है, फिर आग कैसे लग सकती है? अम्मा की बात में दम था। मैं सोचने पर मजबूर हो गया। मोहल्ले के लोग जो आग बुझाने में मसरूफ़ थे, उनसे आग बिल्कुल भी नहीं बुझ रहे थे। मुझे बार बार वही मंजर याद आ रहे थे जब मैं उस दरख्त की शाख काटने लगता। हमेशा ऐसा होता जिससे मैं शाख काटते काटते रह जाता। कोई तो ताकत थी जो मुझे शाख काटने से रोक रही थी।
उसी रोज़ मैं दोबारा से उस दरख्त के पास जाने का फ़ैसला कर चुका था। अम्मा मुझे डरा रही थी कि ज़रूर कोई जिन्नाती मामला है। मैं तुम्हें कह रही हूँ कि ऐसे जंगल में नहीं जाते। तुम्हारे अब्बा बहादुर थे, वो तो 40 साल के थे, तुम तो अभी 20 साल के भी नहीं हो और वहाँ जा रहे हो। अब तो मैं तुम्हें जंगल में कभी नहीं जाने दूंगी। रिस्क हमारे नसीब में हुआ तो यहीं आ जाएगा, पर तुम्हें वहाँ नहीं जाने दूंगी। मैंने अम्मा को तंग आकर कहा। अम्मा तो आए रोज़ मुझ पर ये क्या कुछ पढ़कर नहीं फूंकती। मुझे कुछ नहीं होगा। अब मुझे पता तो लगाना होगा कि आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है। कोई क्यों नहीं चाहता कि मैं लकड़ियाँ मालिक के पास जाकर बेचूं। ये कहते साथ ही मैंने अपनी साइकिल निकाली और जंगल की तरफ रवाना हो गया। ये जंगल हमारे गांव से तकरीबन 20 मिनट के फासले पर था। उस जंगल में बचपन से कोई नहीं जाना चाहता था। हम दोस्त यार जब एक साथ जंगल की सैर के लिए जाने का सोचते तो हमारी माएँ हमें मना कर देती थी कि जंगल में जिन्नात का बसेरा है। यही सोचकर मैं जंगल में फिर से दाखिल हो गया। कुछ देर बाद उसी दरख्त के सामने खड़ा था। मैंने ऊंची आवाज़ से कहा, जो कोई भी है मेरे सामने आओ। क्या ये तुम्हारा ही काम है? मेरे घर में इतना नुकसान करवा दिया, तुम लोग क्यों नहीं चाहते कि मैं इस दरख्त की लकड़ियाँ काटूं? अभी मैंने इतना ही कहा था जब अचानक से मुझे तेज़ खुशबू का एहसास हुआ। फिर कुछ देर बाद एक काला साया मेरे सामने आ खड़ा हुआ। उसे देखकर पहले तो मैं घबरा गया। खौफ से मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। फिर खुद को काबू में रखकर सवाल किया, हाँ कौन हो तुम और क्यों नहीं चाहते कि मैं इस दरख्त की लकड़ियाँ काटूं? देखो मैं गरीब लड़का हूँ, गुर्बत और मुफलिसी ने डेरे डाले हुए हैं। मेरी बहन को दमा है, अपना पेट पालने के लिए अपनी माँ बहन को 2 वक्त की रोटी खिलाने के लिए जंगल में लकड़ियाँ काटने आता हूँ। मुझ पर रहम करो, क्यों मेरे रास्ते में रुकावट पैदा कर रहे हो? अभी मैंने इतना ही कहा था कि अचानक भारी भरकम आवाज़ मेरे कानों में सुनाई दी, अगर लकड़ियाँ काटनी है तो 1000 दरख्त है इस जंगल में, किसी की भी काट लो। हमारे ठिकाने की लकड़ी क्यों काटते हो? इस दरख्त में हमारा बसेरा है जिसकी शाखें तुमने काट कर हमारे ठिकाने को उजाड़ कर रख दिया, और तुमने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। वो भारी आवाज़ सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो काले रंग का साया था जिसे देख रहा था मैंने उसे चौंक कर कहा कि मैंने तुम्हारे साथ तो कुछ नहीं किया। मैंने कौन सा तुम्हें नुकसान पहुंचाया है? जब अगले ही पल अचानक तेज़ रोशनी हुई थी। कुछ पल बाद वो साया मेरे सामने इंसानी रूप में आ गया। वो एक बदशक्ल लड़का था, लेकिन ये देखकर मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई कि उस लड़के का एक बाजू कटा हुआ था। ये देखकर मैं घबरा गया। जब वो बोला, देख क्या रहे हो, ये तुमने किया है, तुमने मेरा नुकसान किया, मेरा बाजू काटा है। जब तुम शाख काटने वाले थे उसी शाख पर मैं बैठा था। शाख काटने के चक्कर में तुमने मेरा बाजू बिगाड़ दिया, तो मैं छोड़ूंगा नहीं। आखिरी बात उसने गुस्से में कही थी। उसके बाद अचानक मुझ पर हमला कर दिया। मैं नीचे फर्श पर जा गिरा। मेरा सर बुरी तरह से चकरा रहा था। इससे पहले कि मैं संभलता उसने दोबारा हमला कर दिया। वो मुझ पर सवार हो गया था और मुझे मुक्के मारने लगा। वो एक हाथ से तो माजूर था, लेकिन दूसरे हाथ से पूरी कुव्वत से मुझे मार रहा था। जब मैंने उससे कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता होता तो मैं ऐसा बिल्कुल ना करता। जब वो कहने लगा, मैंने तुम्हें कई दफ़ा कहा था, तुम्हें काफ़ी इशारे दिए ताकि तुम किसी तरीके से रुक जाओ, लेकिन शायद तुम लालच के इतने अंधे हो कि इसी दरख्त की लकड़ियाँ काट कर पैसे कमाना चाहते हो। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि लालच की सज़ा क्या होती है। ये कहकर वो मुझ पर मुक्के बरसाने लगा। जब अगले ही पल मेरी नज़र पीछे गई, वही स्याह रंग की बिल्ली हम दोनों का तमाशा देख रही थी। अभी मैं उसकी आंखों में देख रहा था। जब अगले ही पल मुझे ऐसे लगा कि मेरा वजूद बेजान हो गया हो। फिर मुझे होश आया तो वो नस्वानी आवाज़ मेरे कान में पड़ी, और तो और मेरा वो भारी भरकम हाथ किसी नाजुक हाथों के बीच था। रोने की आवाज़ सुनते ही मैंने झट से आंखें खोली। मैं उस लड़की को रोकना चाहता था, उससे पूछना चाहता था कि कौन हो, लेकिन वो मेरा हाथ छुड़वा कर भाग गई। मेरे जहन में यही सवाल थे कि वो खूबसूरत लड़की कौन है। इतनी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी थी। मैं जो पता करने आया था कि आखिर मेरे साथ क्यों हो रहा है, मुझे उसका जवाब मिल गया था। मैं वापस घर आया। घर आकर अम्मा ने जो खबर सुनाई उसे सुनकर मेरा वजूद दहल गया। अम्मा खुशी से कहने लगी, पुत्र, वो जो लकड़ियाँ थी ना किचन में, उनकी जगह पर मुझे ये मिला है। अम्मा के हाथों में इतने पैसे देखकर तो मेरी आंखें चमकने लगी। मैंने अम्मा से पूछा, अम्मा ये क्या है, इतने पैसे तुम्हें किसने दिए?
मेरा मालिक तो तुम्हें दे नहीं सकता। बताओ सच सच। अम्मा कहने लगी, बता तो रही हूँ, जहाँ पर लकड़ियाँ रखी थी ना किचन में, उस जगह पर उधर ही पैसे पड़े थे, वहीं पर मैंने देखे, उठा कर ले आई। अम्मा की बातें सुनकर मेरी तो रूह फना हो गई। मैं घबरा गया था। दिल में खौफ था कि अगर पैसे उस जगह पड़े थे तो इसका मतलब ये था कि ये जिन्नात के पैसे हैं, मैं उनका इस्तेमाल नहीं कर सकता था। ये सोचकर खौफ से मैंने अम्मा को कहा, नहीं नहीं अम्मा, हम ये पैसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। खबरदार जो इनमें से किसी ने इस्तेमाल करने की कोशिश की, बल्कि लाओ मुझे दो ये पैसे, मैं उसी को वापस देता हूँ। मैंने वो पैसे जल्दी से जेब में डाले। अगले रोज़ फिर से जंगल की तरफ जाने लगा। मैं उसी दरख्त के पास खड़ा हुआ इंतज़ार करने लगा, लेकिन किसी का भी नामो निशान नहीं था। कुछ देर बाद मुझे दरख्त के पत्तों में हलचल महसूस हुई। मैंने गौर किया तो वही स्याह बिल्ली मुझे देख रही थी। उसकी नीली आंखें जैसे मेरी रूह में झांक रही थी। एकदम मुझे वो लड़की याद आने लगी। ये नीली आंखें तो बिल्कुल एक जैसी थी। अभी मैं कुछ सोच ही रहा था कि अगले पल उस बिल्ली ने मुझ पर छलांग लगाई। वो मेरे बिल्कुल पास खड़ी हुई और एक अजीब सी रोशनी से यकदम वो बिल्ली एक हसीन रूप में आ गई। मैं चौंक गया कि ये लड़की नहीं बल्कि जिनज़ादी है। मैं जिनज़ादी को रूप बदलता देखकर सिरपिटा कर रह गया। उसी हसीन लड़की के रूप में मेरे सामने खड़ी थी। फिर कहने लगी, क्यों आए हो यहाँ? पता है मुझे वो पैसे लेकर आए हो ना? उसकी बात सुनकर तो मेरी बोलती बंद हो गई कि अब मैं इसे क्या कहूँ। मैं तो बस उसके सरापे को ही देख रहा था। जब सवाल किया, तुमने वो पैसे रखे थे? उसने जवाब दिया, हाँ, मेरे भाई ने तो तुम्हारा नुकसान किया था ना, इसी वजह से तुम्हारी मदद के लिए पैसे रखे थे। ये कहते साथ ही उसने मेरा हाथ थामा। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरा दिल धड़कना बंद हो जाएगा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी नरमाहट थी। कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो, मेरे भाई ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। मेरे भाई ने पहले दिन जब तुम्हारी लकड़ियों पर पानी डाला था, मैंने उससे बहुत मना किया था। बस वो जज्बाती है, जब कोई आदमजाद उसे तंग करे तो वो यूं ही बदला लेता है, लेकिन एक हद तक लेता है। मैंने कभी उसे हद पार करने की इजाज़त नहीं दी, बल्कि मैं हमेशा उसे रोकने की कोशिश करती हूँ। पर इस बार शायद बात हमारे घर की थी। ये घर आज से 100 साल पहले से हमारा है। जो भी इस घर पर कब्ज़ा करना चाहता है, हम उसके साथ काफ़ी लड़ते हैं। जिन्नात के जितने भी ख़ानदान हैं, सबकी नज़रें हमारे इस खूबसूरत घर पर हैं, जिसे हमारे बाप दादा ने बनाने में बहुत मेहनत की थी। फिर भला हम क्यों ये किसी को खरीदेंगे? इसी वजह से जब भी कोई हमसे घर छीनने की कोशिश करता है या लकड़ियाँ काटता है, तो हम ऐसे ही डहाल बन जाते हैं। पर जब मैंने तुम्हें देखा तो मैं देखती रह गई थी। तुम बहुत खूबसूरत हो, दिल के भी अच्छे लगते हो। मैं जानती थी कि ज़रूर तुम्हारी कोई मजबूरी होगी, वरना तुम ऐसे ही हमारे घर की लकड़ियाँ ना काटते। उसकी बात सुनकर तो मैं हौनक बना उसे देख रहा था। उसकी आवाज़ में एक ऐसी चाशनी थी जो मुझे अपने शहर में ले डूब रही थी। जब वो कहने लगी, मेरे भाई ने अच्छा नहीं किया, उस रात मैं जान गई थी कि वो ज़रूर कोई नुकसान करके आएगा। तभी मैं फ़िक्र से उसके पीछे चली गई थी। फिर जब मैंने देखा कि तुम्हारी बहन खांस रही है और आग से डर रही है, मैंने फ़ौरन उसकी मदद की और उसे बाहर ले आई। मुझे मालूम था कि तुम्हारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया होगा। ये पैसे इसी वजह से मैंने तुम्हें दिए हैं। इन पैसों को इस्तेमाल करो और यूँ समझो कि जो मेरे भाई ने तुम्हारा नुकसान किया है, ये उसकी भरपाई है। उसकी बात सुनकर मैं हक्का बक्का हो गया। फिर मेरे जहन में एक सवाल आया। मैंने उससे कहा कि तुम उस दिन मुझसे हाथ छुड़वा कर क्यों भागी थी? मेरी बात सुनकर वो घबरा गई और कहने लगी, फिर कभी बताऊंगी, अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। वापस जाओगे तो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ होगा। उसने मुस्कुराहट दबा कर कहा। यह सुनकर मैं चौंक गया। वो मुस्कुरा दी थी और उसकी मुस्कुराहट से उसका चेहरा और भी ज़्यादा खिल गया। मैं वापस घर आ गया। मेरे चेहरे पर एक लाली सी बिखर गई थी। जब से मैं जिनज़ादी से मिलकर आया था, मुझे ऐसे लग रहा था कि मैंने दुनिया देख ली हो। जैसे ही मैं किचन में गया तो ये देखकर एक जगह जम गया। किचन में जो नुकसान हुआ था और जिस वजह से किचन की हालत ख़राब हुई थी, वो सब कुछ मुरम्मत हो चुका था। मैं जान चुका था कि जिनज़ादी इसी चीज़ की बात कर रही थी। अम्मा और मेहरू तो वैसे ही मेरी खाला से मिलने गए हुए थे और शाम को वापस आना था। जब वो शाम को वापस आए तो अम्मा तो किचन की हालत देखकर दंग रह गई। कहने लगी, कितने कम वक्त में तुमने किचन की मुरम्मत भी करवा दी। ये उन्हीं पैसों से है ना?
मैं अम्मा को क्या कहता, बस इस बात में सर हिला दिया। पर मेरे चेहरे पर जो लाली थी उसे देखकर अम्मा को शक होने लगा। एक रोज़ अम्मा कहने लगी, अरे महराज, मैं तो सोच रही हूँ क्यों ना तुम्हारी खाले से फरियाल और तुम्हारे रिश्ते की बात कर ली जाए। अम्मा की बात सुनकर मुझे जिनजादी का खूबसूरत चेहरा याद आने लगा। मैंने जल्दी से अम्मा से कहा, अम्मा कैसी बातें कर रही हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, फरियाल को तो मैं अपनी बहन मानता हूँ। मेरी बात सुनकर अम्मा तड़प कर बोली, मुझे तो पहले ही शक था कि किसी लड़की का चक्कर है, जल्दी से बताओ कौन है लड़की। अम्मा की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया और कहा, वक्त आने पर सब कुछ बता दूंगा, पर वो लड़की आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। अब मैं मुकम्मल तौर पर समझ चुका था कि मैं जिसको अपने जहन में सवार कर चुका हूँ वो कोई लड़की नहीं बल्कि वो तो जिनजादी है। मैं दिन रात उसी के ख्वाब देखने लगा। ऐसे लगता जैसे वो मेरे सामने या मेरे साथ मौजूद हो। जब उससे मिलने की तलब रहती, और अब तो मुझे उस पेड़ से लकड़ियाँ काटने का भी दिल नहीं चाहता था। फिर ना चाहते हुए भी मैं उसे दरख्त के पास चला आया। मैं सुबह से शाम तक उसका इंतज़ार करता रहता, पर जिनजादी मुझसे मिलने नहीं आती थी। उस रोज़ मैंने फैसला कर लिया कि सारा दिन उसी पेड़ के पास गुजारूंगा, शायद जिनजादी मुझसे मिलने आ जाए। रात हो गई थी, रात के पूरे 10 बज गए थे, फिर भी अब तक जिनजादी का नामो निशान नहीं था। जब अचानक मुझे छन छन की आवाज़ सुनाई दी, मैंने जैसे ही देखा तो वो वजूद चलकर मेरे पास आ रहा था। वो छन छन उसी जिनजादी की थी। मेरी आंखें चमक गई, दिल से सुकून का सांस लिया। जैसे ही मेरे पास आकर खड़ी हुई कहने लगी, क्यों मुझे याद कर रहे हो? क्यों मेरी ज़िंदगी मुश्किल में डाल रहे हो? मुझे याद करना बंद करो। क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? तुम्हें जितनी भी मेरी मदद चाहिए मैं तुम्हारी मदद करूँगी, पर ऐसे मुझे याद मत किया करो, मैं रोज़ तुम्हारे पास नहीं आ सकती। उसकी बात सुनकर मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। मासूमियत भरे अंदाज से मैंने उससे कहा, बस आज रात तुम मेरे साथ बातें कर सकती हो, मेरे सामने बैठ सकती हो, मैं तुम्हें जी भर कर देखना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा दी। वो मेरे बिल्कुल पास आकर बैठ गई। मैं उसे देख रहा था। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे उसके साथ गुजारे मुझे अभी तो 2 पल ही हुए थे। जब उसने फिर से घड़ी देखा और कहने लगी, मुझे जाने दो, मुझे जाना है। इस बार मैंने सख्ती से उसका हाथ पकड़ा और भवें सुकेड़ कर कहने लगा, आज तो तुम मुझे बता ही दो कि आखिर तुम्हें इतनी जल्दी क्या होती है कि इन वजूहात की बिना पर तुम जाती हो। मेरी बात सुनकर उसका रंग फक हो गया। वो बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी, फिर कहने लगी, 10 सेकंड रह गए, छोड़ो मुझे, खुदा के वास्ते जाने दो। ये कहते उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी और फ़ौरन उसके चेहरे पर पसीना आने लगा। मैंने फ़ौरन ही उससे कहा, मुझसे वादा करो कि मुझसे मिलने रोज़ आया करोगी, फिर तो मैं छोड़ता हूँ। वो कहने लगी, नहीं, मैं ऐसा वादा नहीं कर सकती, 5 सेकंड रह गए। वो बार बार घड़ी की जानिब देख रही थी, फिर कहने लगी, अच्छा ठीक है, वादा करती हूँ, छोड़ो मेरा हाथ। मैंने एकदम से उसका हाथ छोड़ा। उसके बाद वो मेरी आंखों से गायब हो गई। मैं रात के 4 बजे जैसे ही घर आया, अम्मा दरवाजे के पास खड़ी थी, गुस्से से बोली, महराज कहाँ गए थे तुम? क्या हो गया तुम्हें? कहीं तुम उस लड़की से मिलने तो नहीं गए? अम्मा की बात सुनकर बेसाख्ता मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। अम्मा तो कुछ और ही समझ रही थी। मैंने फ़ौरन संजीदा होकर कहा, अम्मा ऐसी बात नहीं है, उसे मेरी ज़रूरत थी, मेरी मदद चाहती थी, इसी वजह से मैं उसकी मदद करने गया था। अम्मा कहने लगी, ये सब नहीं चलेगा, अगर तुमने उससे शादी की बात ना की तो फिर मैं तुम्हारी शादी फरियाल से करवा दूंगी। अब वक्त नहीं है। मुझे तो लगता है वो लड़की बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है, मेरे खूबसूरत बेटे को जाल में फांस रही है। अम्मा की बात सुनकर मेरी हंसी छूट गई। मैंने दिल में सोचा, मैं कहाँ खूबसूरत हूँ, पर हर माँ को अपना बेटा चांद की तरह लगता है। अब मैं यही सोच रहा था कि क्या जिनजादी अपने वादे का पास रखेगी या नहीं, लेकिन वो दिल की अच्छी थी, वादे से फिर नहीं सकती थी। अगले रोज़ जब रात के 12 बजे जैसे ही मैं उस जगह पहुंचा तो वो वहीं बैठे थे, शायद मेरा इंतज़ार कर रही थी। वो काफ़ी उदास थी। मैं जैसे ही उसके पास गया और चहक कर उसे बुलाया तो उसने मुंह मोड़ लिया, शायद मुझसे नाराज़ हो गई थी। मुंह मोड़ने पर मैं उसके दूसरी तरफ आकर बैठा और प्यार से बोला, नाराज़ हो मुझसे? पर मैं क्या करूं, अब मुझे तुम्हारी आदत हो गई है। आज तो मैं तुम्हें अपने दिल की बात बता कर ही रहूँगा। मेरी बात सुनकर उसने आंखें सुकेड़ कर मुझे देखा और फिर बोली, कैसी बातें कर रहे हो, होश में तो हो? जब मैं अपने ख्यालों में मगन उससे कह बैठा, होश तो मेरे तब से खो गए हैं जब से तुम्हें देखा है। ये कहते हुए कब मेरा हाथ उसके चेहरे की तरफ चला गया मुझे पता ही नहीं चला।
फिर जिनज़ादी अगले ही पल एक झटके से मुझसे दूर हो गई। उसे खुद से दूर होता देखकर मेरा वजूद कांपने लगा। मैंने उससे कहा, क्या हो गया तुम्हें? अच्छा नहीं लगा? माफ़ कर दो, बस क्या करूं? मैं तुम्हारे लिए जो जज्बात रखता हूँ वो जज्बात कभी बदल नहीं सकते। हाँ, मुझे नहीं पता कि मुझे तुमसे कब मोहब्बत हुई है। मैं जानता हूँ तुम जिनज़ादी हो, मैं आदमज़ाद हूँ। अभी मैंने उतना ही कहा था जब वो अगले ही पल तड़प कर खड़ी हुई। फिर मुझसे कहने लगी, ये कैसी बातें कर रही हो? ये नामुमकिन है, इसी वजह से मैं तुमसे नहीं मिलती थी। इस सोच को अपने जहन से निकाल दो। वो जाने ही वाली थी जब मैंने फिर से उसका रास्ता रोक लिया। मैं सर झुकाकर उसके सामने खड़ा था, उदासी से बोला, ऐसा मत कहो, मेरा तो दिल टूट गया था। न जाने वो मेरे जज्बात क्यों नहीं समझ रही थी। वो बेचैन दिखाई दे रही थी। फिर अगले ही पल मुझे शानों से थाम कर कहने लगी, मुझे इसी बात का डर था, मैं किसी और की अमानत हूँ। ये कहते साथ ही उसने अपना रुख दूसरी तरफ फेर लिया। मैंने उसका चेहरा थामा, फिर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, ये बात मुझे सीधी तरह से मुंह पर क्यों नहीं कह रही हो? क्यों मुंह फेर कर कह रही हो कि तुम किसी और की अमानत हो? क्या तुम उसे पसंद करती हो? क्या तुम्हारे दिल में उसके लिए मोहब्बत है? मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर 2 नन्हे आंसू गिरे जो मोती की तरह उसके चेहरे पर घूम रहे थे। उसे रोता देखकर मेरे दिल को बहुत तकलीफ हो रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे न जाने वो कितने दर्द में हो। बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी। जब अगले ही पल उसके हाथ में मौजूद वो घड़ी मैंने झटके से खींच कर उतारी और दूर जा फेंकी। जब उसने मुझे ये हरकत करते हुए देखा तो सख्त लहजे में कहने लगी, महराज, ये तुमने क्या किया? क्यों ऐसा किया है? अब मुझे कैसे पता चलेगा कि 3 बज गए? मैं 3 बजने से पहले वहां नहीं गई तो मेरी जान चली जाएगी। ये बात सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मुझे नहीं पता था कि 3 बजना उसके लिए इतना अहम है। मैंने हैरानी से कहा, क्यों? तुम्हें क्यों वापस जाना है? तुम्हारी जान कौन लेगा? किसकी बात कर रही हो? अभी मैंने उतना ही कहा था जब वो जिनज़ादी आंसू बहाकर रोने लगी। फिर रोते रोते उसने मुझे अपनी सारी दास्तान सुना दी। उसकी दास्तान सुनकर मुझे ऐसे लगा कि किसी ने मेरे वजूद से जान निकाली हो। जिनज़ादी ने कहा, मेरा नाम महक है। मैं जो एक आम से जंगल में इस आम हुलिये में फिरती हूँ। दरअसल शहंशाह जिन्नात की बेटी हूँ। लेकिन मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिससे मेरी किस्मत पलट गई। उस वक्त मेरे भाई से दुश्मन जिन्नात के बेटे का कत्ल हो गया था, जिसकी वजह से बदले में अब्बा हुजूर ने मुझे वहाँ दे दिया। वो लोग मुझ पर जुल्म करते हैं, मुझसे निकाह करना चाहता है वो। और मेरे बाप ने शर्त रखी थी कि जब तक मैं 18 साल की नहीं होती तब तक वो मुझसे निकाह नहीं कर सकता। इसी वजह से वो बस मेरे 18 साल के होने का इंतज़ार कर रहा था। मुझ पर पाबंदियाँ लगाई जाती हैं, इसीलिए जैसे ही 3 बजते मैं उसके पास चली जाती हूँ। मैं कुछ देर के लिए अपनी बस्ती में आती हूँ, जहाँ मैं अपने बहन भाइयों के साथ कुछ वक्त बिताती हूँ। मेरा भाई मुझ पर जान निछावर करता है, वो मुझे लेकर जज्बाती हो जाता है। मैं अपने भाई से बहुत मोहब्बत करती हूँ, उसी की मोहब्बत की खातिर मैं कुर्बानी को तैयार हूँ। मैंने जैसे ही जिनज़ादी की बात सुनी तो मामला समझ गया। जब मैंने उसे इजहार मोहब्बत किया तो वो यूं बेचैन होने लगी थी, क्योंकि वो तो दुश्मन जिनज़ादे की बीवी बनने जा रही थी। अगला सवाल मैंने उसे जो किया उसे सुनकर वो सहम कर रह गई। मैंने उससे पूछा, तुम कितने साल की हो? 18 की कब होगी? जब वो बोली, 1 महीने बाद। पूरे 1 महीने बाद मेरे दुश्मन जिन्नात धूमधाम से मुझे हमेशा के लिए अपने ख़ानदान में शरीक कर लेंगे। यूँ मैं जो 3 बजने से पहले अपने घर आती हूँ, उसके बाद मैं हमेशा के लिए दुश्मन जिन्नात के ख़ानदान से हो जाऊँगी। मैं तो दिन रात रोती रहती हूँ, उस वक्त को कोसती हूँ। बस मेरे अब्बा हुजूर ने जो फ़ैसला किया था वो फ़ैसला सिर्फ़ और सिर्फ मेरे भाई के लिए किया। मुझे उस पर काफ़ी तरस आ रहा था। मैंने उससे कहा कि आखिर क्यों तुम अपनी कुर्बानी देना चाहती हो? तुम्हारी ख्वाहिशात का क्या होगा? जब वो बोली, मेरी ख्वाहिशात का तो उसी वक्त गला घोंट चुका था जब मुझे पता चला था कि मेरे भाई ने किसी का कत्ल किया है। हमारे जिन्नाती ख़ानदान में यही तौर तरीके हैं, क्योंकि अगर मेरे अब्बा हुजूर ने ऐसा कदम नहीं उठाया तो सारे जिन्नात अब्बा के ख़िलाफ़ होंगे कि उन्होंने इंसाफ नहीं किया। इंसाफ की खातिर ही तो वो मुझे दुश्मन जिन्नात को सौंप चुके हैं। मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरा दिल तोड़ दिया हो। मेरे सारे अरमान टूट चुके थे। अब तक यकीन नहीं आ रहा था कि वो जिनज़ादी जिससे मैं इतने अरसे से मिलता रहा हूँ 1 महीने बाद मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, तो मुझसे मिलने भी नहीं आ सकेगी। जिनज़ादी बहुत रो रही थी जब मैंने उसके आंसू साफ किए और फिर बोला,
یہ 1 مہینہ تو ہمارے پاس ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس 1 مہینے میں تم مجھ سے ضرور ملو۔ وہ مسکرا دی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میری زندگی بس 1 مہینے کی ہے، اس کے بعد زندگی مجھ سے چھن جائے گی۔ میں اس 1 مہینے کو جینا چاہتا تھا۔ تبھی ایک روز جن زادی کو اپنے ساتھ اپنے گھر لایا۔ اماں نے اس حسین لڑکی کو جیسے دیکھا تو دیکھتی رہ گئی۔ مجھ سے کہنے لگی، مہراج، کیا یہ وہ لڑکی ہے جس سے تم شادی کرنا چاہتے ہو؟ میں نے اماں کی بات سنی تو انہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ مہرو مہک سے ملی ہوئی تھی تو بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ مہک نے بتایا کہ ہمارے خاندان میں ایک ایسی دوا ملتی ہے جس سے دمہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تمہاری بہن ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے گی، فکر مت کرو۔ اس نے مجھے امید دلائی۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ میں تو اس کا جتنا شکر ادا کرتا اتنا ہی کم تھا۔ اور یوں اس نے مجھے ایک دوا دی تھی۔ وہ دوا میں نے مہرو کو کھلائی تھی، جس کے بعد مہرو کا دمہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ یہ 1 مہینہ کیسے ختم ہوا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر اچانک سے مہک اور میری آخری ملاقات آ گئی۔ مہک مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور جانے والی تھی۔ اس روز میں بہت اداس ہو گیا۔ میں واپس آ گیا۔ اب تو میرا جنگل میں دل ہی نہیں لگتا تھا۔ لیکن جب سے مہک نے ہماری مدد کی تھی، ہمارے حالات بالکل ٹھیک ہو گئے تھے۔ اماں مجھ سے کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے؟ وہ لڑکی پھر تمہارے ساتھ نہیں آئی؟ اسے لے کر آؤ نا، کتنی اچھی لڑکی تھی۔ مجھے تو لگا تھا کہ تم ایسے ہی کسی لڑکی سے محبت کر بیٹھو گے، لیکن وہ تو سچ میں شکل و صورت سے نہیں بلکہ دل کی بھی خوبصورت ہے۔ اماں کی بات سن کر میں نے اماں کو سمجھا دیا تھا کہ نہیں، میں اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ اماں تو حیران ہو گئی تھی، اور یوں میں نے اماں کو ساری سچائی بتا دی تھی۔ اماں اور مہرو نے یہ سچائی سنی تو وہ دونوں منہ پر ہاتھ رکھ کر حیرانی سے مجھے دیکھنے لگی۔ مہرو میرے گلے لگ گئی تھی، جبکہ اماں بھی پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے اماں کو کہا، اماں کوئی بات نہیں ہے، مہک نے یہ سب کچھ اپنے ابا حضور کے لیے کیا ہے، اب تو اس کی شادی بھی ہو گئی ہوگی۔ کاش مجھے پہلے پتہ چل جاتا تو میں اس سے دل ہی نہ لگاتا۔ میں نے اماں کو تو سمجھا دیا تھا، پر میں اپنے اس دل کو کیسے سمجھاتا؟ لیکن میں جانتا تھا کہ مجھے اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہی ہوگا۔ اسی وجہ سے اماں نے میرا رشتہ خالہ کی بیٹی فریال کے ساتھ پکا کر دیا۔ میں جب بھی فریال کو دیکھتا، مجھے جن زادی کا چہرہ ہی دکھائی دیتا۔ مجھے ہر طرف وہی دکھائی دیتی، ایسے لگتا جیسے وہ میرے آس پاس موجود ہو۔ میں چاہ کر بھی اپنا دل کسی اور کو نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میرا دل تو اب مہک کا ہی ہے، نہ جانے وہ کس حال میں ہوگی۔ میں کبھی کبھار یہ بھی سوچتا تھا، بس اس کے لیے دعا بھی کرتا تھا کہ کہیں اس پر ظلم نہ ہو رہا ہو۔ میں نے اس سے آخری دفعہ ملاقات کے بعد یہ بھی کہا تھا کہ جب موقع ملے تو مجھ سے ملنے ضرور آنا، ہماری یہ دوستی کبھی ٹوٹ نہیں سکتی۔ اس نے بھی مجھ سے وعدہ کیا تھا، پر ابھی تک وہ مجھ سے ملنے نہیں آئے تھے۔ اور پھر میری شادی والے دن مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے وہ میرے آس پاس موجود ہو، جب اچانک ہی مجھے وہ دور کھڑی دکھائی دی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس کا عکس ہو۔ میں فوراً ہی اسٹیج سے اتر کر اس کے پاس گیا تھا۔ میں نے اسے مخاطب کیا۔ جب اسے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ کہنے لگی کہ میں صرف 30 سیکنڈ کے لیے آئی ہوں، اس کے بعد ہمیشہ کے لیے تم سے دور ہو جاؤں گی۔ یہ لو، یہ تمہاری شادی کا تحفہ ہے۔ اس نے مجھے ایک چھوٹی سی ڈبی دی تھی۔ میں نے جب وہ ڈبی کھولی تو اس میں ایک انگوٹھی تھی۔ اس انگوٹھی کے اندر ایک بڑا سا نگ تھا، پر میں نے جیسے ہی اس کو دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس نگ میں میرے اور جنزادی کے سارے لمحات قید تھے جو ہم نے ایک ساتھ گزارے تھے۔ یہ تحفہ مجھے بہت پسند آیا تھا، پر جیسے ہی میری نظر سامنے گئی، جنزادی وہاں سے غائب تھی۔ میں اسے پکارنے لگا، مہک، مہک کہاں ہو تم؟ میں نے یہاں وہاں اسے تلاش کیا۔ جب اگلے ہی پل مجھے کسی نے پیچھے سے بلایا تھا، وہ اماں تھی جو مجھے کہہ رہی تھی، ارے مہراج، میں تمہیں کب سے پکار رہی ہوں، کہاں کھوئے ہو؟ اماں کی بات سن کر میں نے یک دم وہ ڈبی چھپا لی۔ اماں سے کہنے لگا، کچھ نہیں، بس میرا ایک دوست ملنے آیا تھا۔ میں پھر سے اسٹیج پر آ گیا جہاں فریال میرے ساتھ بیٹھی تھی، اور یوں کچھ ہی دیر بعد میری بیوی کے طور پر فریال میرے گھر آ گئی تھی۔ فریال بلا شبہ ایک سمجھدار اور اچھی سیرت کی لڑکی تھی۔ میں چاہ کر بھی جنزادی کا ذکر اس سے نہیں کر سکتا تھا۔ جنزادی آج بھی مجھے اتنی ہی یاد ہے۔
मैं जब उसे याद करता हूँ तो वो जादुई अंगूठी खोल कर बैठ जाता हूँ जिसमें हमारे सारे लम्हात कैद हैं। उन लम्हात को मैं फिर से देखकर अपनी और उसकी यादों को ताज़ा करता हूँ, जिससे मेरे दिल को सुकून मिल जाता है। बस मैं यही दुआ करता हूँ कि वो जहाँ भी हो महफूज हो। उसने मेरे लिए जो कुछ किया था वो मैं कभी भूल नहीं सकता। वो तो एहसान थे, मैं उन एहसानों का बदला कभी भी चुका नहीं सकता था। मैं जब भी मेहरू को खुश देखता हूँ, वो आराम और सुकून से खेल रही होती है और यहाँ वहाँ भाग रही होती है। मुझे उस जिनज़ादी की याद आती है जिसने मेहरू की सेहत के लिए मेरी मदद की थी। और तो और हमारे घर के जितने भी हालात ठीक हुए थे वो सिर्फ उसी की वजह से हुए थे। मैंने और अम्मा ने मेहरू को सख्ती से मना कर दिया था कि कभी भी फरियाल के सामने इसका जिक्र मत करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी अज़दवाजी ज़िंदगी में जिनज़ादी की वजह से कोई खलल पड़े। शादी के बाद गुजारे के लिए मुझे वापसी से वही काम करना पड़ा था। लकड़हारा बनकर मुझे उसी जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटनी पड़ी थी। मैं आज भी जब उस दरख्त के पास से गुजरता हूँ, वो स्याह बिल्ली मुझे वैसे ही घूर रही होती है, जिसे देखकर मैं एकदम से मुस्कुरा जाता हूँ। पर मैं जानता हूँ अब मैं उससे कभी वैसे मुलाकात नहीं कर सकता जो मुलाकात मैं कुछ अरसा पहले करता था।